Now, question number 3 of the exercise self-evaluation, chapter trigonometrical identities and table, chapter 16 of class 10 mathematics. So, let's start the video from third question. Prove the following identity: 1 upon sin theta plus cos theta plus 1 upon sin theta minus cos theta is equal to 2 sin theta upon 1 minus 2 cos square theta. So first of all, write the left hand side, only left hand side of question number 3. It is your third question as given in your book, and left hand side as a 1 upon sin theta plus cos theta plus 1 upon sin theta minus cos theta. First of all, take the LCM of both the fraction, sin theta cos theta into sin theta minus cos theta. So sin theta plus cos theta and sin theta minus cos theta as a LCM. Clear? Now simplify the numerator term. When we divide LCM by sin theta plus cos theta, so sin theta plus cos theta cancel out and it is your quotient multiplied by 1. Means simply you can say that LCM as a product of the denominator, and by cross multiplication we can find the value of numerator. So sin theta minus cos theta, right here, sin theta minus cos theta. When sin theta minus cos theta multiplied by 1, we write simply sin theta minus cos theta. And again, for multiplication of these two terms, sin theta plus cos theta multiplied by 1, we get as a sin theta plus cos theta. Clear? Now simplify sin theta plus cos theta minus cos theta, cancel out. So 2 sin theta upon a plus b, a minus b. What we can write here? A square means square of first term minus b square means square of second term. Clear? Now, but your answer in the form of only cos square theta. So write the value of sin square theta in term of cos square theta. What we can write? 2 sin theta upon, at the place of sin square theta we can write 1 minus cos square theta. And again 1 minus cos square theta, 1 cos square theta already given here. So your answer is 2 sin theta upon 1 minus 2 cos square theta as your right hand side. Means 2 sin theta upon 1 minus 2 cos square theta. So if we start from left hand side, we get the result in the term of right hand side. So your question is completed. Left hand side is equal to right hand side, hence proved. Clear? Now move on next question, question number 4. Now in question number 4, it is given that prove that cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cot a is equal to cos a plus sin a. So first of all, write the question number 4. So it is your question number 4, and here just only write the left hand side of the fourth question. Look here, your left hand side in the term of cos, tan, sin, and here cot, I think by mistake I write here cot, so it is cot. Okay, and right hand side just only in the form of cos and sin. So try to change all the term in the form of sin and cos. It is better to change all the term into sin or cos. So you get like this: cos a upon 1 minus tan a, 1 माइनस tan a. लेकिन अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप चाहिए तो कॉट को चेंज कर लीजिए tan के फॉर्म में, या तो फिर हमको साइन कॉस लाना है तो सभी टर्म को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, जो कर सकते हैं, तो भी रिजल्ट आएगा. एक मेथड तो हम आपको दिखा देते हैं कि हम कॉट को चेंज कर रहे हैं tan के फॉर्म में, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा. कॉट a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a. क्लियर? ये इतनी चीज़ें हो गई. अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, tan हमारा ऊपर चला जाएगा. उससे देखिए क्या बनता है, फ़ायदा क्या होना है हमको. कॉस ए, या हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a प्लस, यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा आप
तो ऑलरेडी यहाँ पर साइन ए तो है, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो गया tan a -1 अपॉन tan a, ऐसा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस tan a को ऊपर भेज देंगे, वो तो जाएगा ही क्योंकि फ्रैक्शन इस तरीके से सिंप्लीफाई होगी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ पर आएगा। ये दोनों काम हम एक साथ कर लेंगे तो हमें ज़रा सा इजी हो जाएगा, एक स्टेप हमारे लिए शॉर्ट हो जाएगा। बाकी लेफ़्ट पोर्शन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जिस तरीके से है हम उसको उसी तरीके से लिख रहे हैं। tan a प्लस ये हो गया आपका sin a इंटू tan a अपॉन, इसमें हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हमको 1 माइनस tan a मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, ठीक है, तो हमें एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। अब अगर एलसीएम ले लें तो 1 माइनस tan a एज ए एलसीएम, 1 माइनस tan a एज ए एलसीएम, डिनोमिनेटर आर सेम, सो सिंपली राइट हियर न्यूमरेटर cos a माइनस sin a tan a, sin a एंड tan a, ये हो गया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमको जो प्रूफ करना है वो सिर्फ cos a प्लस sin a रिजल्ट आना है, तो जाहिर सी बात tan उसमें नहीं होगा, तो tan की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे sin अपॉन cos के फॉर्म में, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो चेंज द tan a इन टर्म ऑफ sin एंड cos, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये करना तो है, चाहे पहले कर लिया जाए चाहे लास्ट में कर लिया जाए, लेकिन करना पड़ेगा। tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos, सेम एज हियर tan इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a। फिर से फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा, एलसीएम लेना होगा, उसके बाद देखिए क्या मिलता है आपको। न्यूमरेटर में क्या होगा, cos a एलसीएम हो जाएगा, इन न्यूमरेटर cos a एज ए एलसीएम, एंड वी कैन राइट हियर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो गया। सेम एज इन डिनोमिनेटर cos a ऑल्सो एज ए एलसीएम, cos a माइनस साइन a, ठीक है, ये इतना काम हो गया। cos a कैंसिल विद cos a, मीन्स आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है अभी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a। यहाँ पे अगर हम रूल लगा दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखिए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो एक फ़ायदा हमको क्या हो जाएगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, सो वी कैन राइट हियर cos a माइनस साइन a एंड cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a, एंड योर डिनोमिनेटर एज ए cos a माइनस साइन a। तो इसकी वजह से एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म कैंसिल, फर्स्ट टर्म कैंसिल विद डिनोमिनेटर। क्लियर? नाउ रेस्ट पार्ट एज ए आंसर, क्या रिजल्ट मिला आपको, cos a प्लस साइन a, यही आपका राइट हैंड साइड था, cos a प्लस साइन a एज ए राइट हैंड साइड। आइए देख लेते हैं फिर से राइट हैंड साइड, यही है कुछ और है। देखिए cos a प्लस साइन a, ये राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। अब इसमें एक जगह tan था, एक जगह cot था, आप चाहते तो यहीं पर cos और sin एलसीएम, वो cos और sin के फॉर्म में tan या cot दोनों को ब्रेक कर सकते थे, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस स्टेप पे जाके चेंज करते हैं। हमने दोनों में नहीं किया क्योंकि हमको लगा कि शायद कुछ ऐसे इजी हो जाए, बट कोई फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं। अगर हम यहाँ पे साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन कर लेते तो भी हमारा रिजल्ट मिल जाता है, शायद एक दो लाइन हमारी कम हो जाती है। आप वैसे करके देख लीजिए, हो सकता है आपकी एक आध लाइन कम हो जाए, बट अपने से लगाइए। क्वेश्चन देखना बहुत ईजी है, देख के लगता है कि सारा क्वेश्चन आसान है, बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगिएगा तो इसमें बहुत से स्टेप ऐसे आते हैं जहाँ पर आप रुकिएगा, सोचिएगा, सोल्यूशन निकालिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो वही मेन पॉइंट है जो आपको एग्जाम में परेशान करता है। इसी इतने काम की हम लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, इसको हमने क्या किया, कॉर्ड को चेंज कर लिया tan के फॉर्म में, एलसीएम ले लिया तो ये tan हमारा ऊपर चला गया। और एक स्टेप यहाँ पे आपको ध्यान देना, माइनस कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस tan था और यहाँ पे tan a माइनस 1 था। तो अगर डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग है तो माइनस कॉमन लेकर साइन को पहले हमको सेम करना होगा।
आप अगर इसको कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज करिएगा तो ये वाला स्टेप तो मिलेगा ही, आपको माइनस कॉमन लेना होगा उसमें भी। तो ये अपना आप समझे रहिएगा कि जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो क्या हमारा आएगा। उसके बाद क्या किया गया, जब माइनस कॉमन ले लिया तो हमने अब क्या किया, 1 माइनस टेन है हमारा एलसीएम हो गया, और डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर में कोई चेंज आना नहीं था, कॉस ए माइनस साइन ए टेन ए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टेन को चेंज कर लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के टेन को चेंज किया जा रहा है ताकि एक साथ हमारा पूरा फंक्शन साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इस टेन को चेंज किया साइन अपॉन कॉस एंड सेम एज हियर साइन अपॉन कॉस। नाउ अब न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन 1 है तो कॉस ए एज ए एलसीएम हो गया, आपका कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये बन गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी कॉस एलसीएम हो गया, कॉस एलसीएम हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए आपका वो आ गया। उसके बाद एक रिलेशन और लगाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड इन अनदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो ये डिनोमिनेटर आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपका एज ए रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रिजल्ट में हमको शो करना था कॉस ए प्लस साइन ए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशली इसी एक्सरसाइज के सेल्फ इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम का हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी एक्सरसाइज के वीडियो बने हुए हैं, आप चाहिएगा तो वहाँ से देख लीजिएगा। क्लियर। बट ये सेल्फ इवैल्यूएशन की इस एक्सरसाइज को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, बट प्रैक्टिस आपको सबकी करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ट्रिक होता है एक आध जगह पे, वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। क्लियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू एवरीवन।